everyone, welcome back to Skill Trip. Today we are going to learn something super exciting, how computers talk to us. Have you ever seen a program ask you a question like what's your name? This is called input. In Scratch, we use ask and wait block and the computer asks and wait for your answer. Whereas in Python, we uses the input function. Same idea, different style. So today, we will build the same program in Scratch and Python and see how both are actually doing the same thing. Let's get started and make our program talk. Alright, let's take a quick look at what we are going to learn today. First, we will understand what input is, how a computer asks you a question and waits for your answer. Then, we will explore ask and input, how we do this in Scratch using the blocks and in Python using the input function. And finally, we will build a mini program where we actually takes the value from the user and use them in our code. So let's get ready. Now imagine this. You walk into a restaurant and the waiter comes to you and asks, "What would you like to order?" You tell him your choice and he remembers it. Now, what if I told you computers do the same things? In coding, this is called input. The computer asks you a question and you type your answer and it remembers it and then uses it. So, here is the magic. The computer stores your answer safely in a label box called a variable. So, every time you give input, you're actually teaching your program what to do next. तो चलो अब देखते हैं कि हम लोग स्क्रैच में यूजर से वैल्यू कैसे ले सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये स्प्राइट हटा देती हूँ. क्लिक ऑन यस एंड आई एम गोइंग टू टेक अ डिफरेंट स्प्राइट. लेट्स टेक एबी. ओके, और इवेंट्स ब्लॉक में जाएंगे. क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग. ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट वी विल गो टू द लुक्स ब्लॉक. ठीक है, तो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले अ मैसेज. सो लेट्स से आई एम राइटिंग ओवर हेयर, वेलकम टू सिंपल एडिशन प्रोग्राम. ठीक है, एंड देन सो यू कैन सी जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ, इट सेज वेलकम टू सिंपल एडिशन प्रोग्राम. यहाँ पर आप इसके सेकेंड्स थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं सो दैट मैसेज जो है आराम से यू कैन रीड इट. अब उसके बाद नाउ यू हैव टू गो टू द ब्लू कलर सेंसिंग ब्लॉक और यहाँ पर ये जो आस्क एंड वेट ब्लॉक है. ठीक है, ये आप यूज करेंगे. सो लेट्स से एबी इज गोइंग टू आस्क योर नेम. व्हाट इज योर नेम? And then it has to say hi. So suppose if I say Divya, it has to say hi Divya. So I'll go to looks block and click on save. ठीक है, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन पूछेगी. It will ask you a question. Okay, what is your name? Now suppose if I typing my name also, it is not getting stored anywhere. है ना, तो हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे? So you will use the save block. Okay. And then it has to say hi Divya. So operator block में हमारे पास एक ब्लॉक होता है join block. Join block का काम होता है that it join two strings. दो टेक्स्ट वैल्यू को ये join कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको, ये ओवल शेप है, that also you have to take care. यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे and then simply I'll say hi. Okay, and give a space also. Otherwise दोनों टेक्स्ट जो है एकदम they are going to be one behind the other. और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर again you have to go to the sensing block and drag this answer. So this will behave as a variable over here which is going to store your answer. So now let's check. When I click on the green flag, it says welcome to simple addition program. Then it is waiting for the user to type the name. See, the cursor is blinking. So it will say what's your name? And I will type my name Divya. Once I click on enter, it says hi Divya.
तो ये जो आंसर है यहाँ पर दिस आंसर इज बिहेविंग एज अ वेरिएबल, और आस्क एंड वेट वाला जो ब्लॉक है दिस इज योर इनपुट फंक्शन। Now we are going to see how we can take the value from the user in Python and write the same program. तो अभी आप जो देख रहे हैं that is a shell mode. Shell mode में हम लोग लाइन बाय लाइन प्रोग्राम लिख सकते हैं या सिंगल लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. But if we want to write down a big program, then we have to go to the script mode. So you will click on File, go to New File, and you will see a different editor has got open. ऊपर आपको अनटाइटल्ड दिखेगा, दैट मीन्स जब आप इसमें प्रोग्राम लिखेंगे सो यू नीड टू सेव द फाइल, और उस फाइल का एक्सटेंशन होगा .py, मतलब वो पाइथन की फाइल से. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. अब अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ ऐसा हमारा ये प्रोग्राम था स्क्रैच में. ठीक है, तो पाइथन में ग्रीन फ्लैग तो है नहीं. अब यहाँ पे स्क्रैच में फर्स्ट लाइन है, से वेलकम टू सिंपल एडिशन. से का मतलब है कि मुझे लाइन को डिस्प्ले कराना है ना, खाली. तो उसको अगर डिस्प्ले कराना है तो पाइथन में हमारे पास फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन. ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन लिख के और आपको अंदर का जो मैसेज डिस्प्ले कराना है दैट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन डबल कोट्स. सो वेलकम टू सिंपल एडिशन. ठीक है, और डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन कम टू द नेक्स्ट लाइन. अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आस्क, तो पाइथन में आस्क वाला जो ब्लॉक है उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इनपुट. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन इनपुट, और यहाँ पर हम उसको बोलेंगे व्हाट इज योर नेम. ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा के, क्योंकि हमारा ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसलिए हमें डबल कोट्स मिल गया. नाउ यू विल सी कि यहाँ पर स्क्रैच में मैंने लिखा है से जॉइन हाई, और यहाँ पर ये जो आंसर है जिसको मैंने बोला था कि ये वेरिएबल है, तो यहाँ पर पाइथन में कहाँ पर ये स्टोर होगा. तो ये जो इनपुट फंक्शन है इससे पहले ही आप लोग एक वेरिएबल बनाएंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे. तो इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू यूजर देगा वो आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और फिर उसे हम फाइनली प्रिंट करा देंगे. प्रिंट, और मुझे कहना है हाई. हाई तो मेरा एज इट इज होगा, सेपरेटेड बाय कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा आंसर वेरिएबल. ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम चीज़ मैं कर रही हूँ. यहाँ पे से था तो मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज़ करा है. यहाँ पे हाई एज इट इज डिस्प्ले कराना था तो मैंने हाई को डबल कोट्स में दिया है, सेपरेटेड बाय कॉमा, और यहाँ पर आपका ये वेरिएबल है. ठीक है, तो इसको फाइल को आप कर देंगे सेव आप इसको कर दीजिए. Now let's run our code. So I'll click on the run button and say run module, and here you can see it says welcome to Simple Edition, what is your name? And if I type my name over there and press enter, then it says hi Divya. Okay, now if you all remember and if you have watched my previous video about the variables, वहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे हम फिक्स नंबर्स को डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करा सकते हैं. ठीक है, और वहाँ पर हम लोग सिंपल एडिशन परफॉर्म करते हैं. बट नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. तो यहाँ पर हमारा ये आस्क ब्लॉक आएगा जिसमें आप लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, और फिर वेरिएबल्स में जाकर आपको यही सेट करना है, एंड देन आई विल से num1 टू आंसर. इसका मतलब ये यहाँ पर जो वैल्यू लेगा यूजर से एंटर द फर्स्ट नंबर, वो वैल्यू जो है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. तो ये जो वेरिएबल है जब भी ये आस्क के बाद लगता है उस करंट वैल्यू को ये स्टोर करता है. ठीक है ना, तो उसको हम दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा ग्रीन फ्लैग क्लिक करके. सो नाउ इट इज आस्किंग माय नेम. I'll type my name over here, press enter, and then it will say enter the first number. So I'll say 6.
So when I click 6, you can see the 6 is stored in the first variable num1. इसको आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ सेकेंड नंबर। अब बिल्कुल वैसा ही करना है जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, है। तो num2 जो है वो आंसर हो गया। इसको दोबारा से हम लोग रन करते हैं और चेक करते हैं। Enter the first number, so let's say 8. Enter the second number, let's say 9. ठीक है ना। तो अभी हमने सम का वेरिएबल बनाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे सम शो नहीं कर रहा है। एंड ऑल्सो यू मस्ट बी सीइंग इट कि जब भी मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ हमेशा प्रीवियस वैल्यू स्टोर होती है। तो इस प्रीवियस वैल्यू को हमें फ्लश आउट करना है, क्लियर आउट करना है। उसके लिए आपको फिर से ये सेट वेरिएबल जो है सेट num1 to 0 करना पड़ेगा और इसी तरीके से आप इसको बोलेंगे सेट num2 to 0। मतलब जब भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करें प्रीवियस वैल्यू जो है वो हट जानी चाहिए और दोबारा से ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए। अब सेम चीज़ पाइथन में कैसे करेंगे? पाइथन में भी अब यहाँ पर हमको इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, और उसको हमको वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ लिखूँगी num1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्योंकि हमको नंबर एंटर कराना है तो इसलिए हम लोग इनपुट फंक्शन से पहले इंट लिखेंगे, इनपुट, और मैं यहाँ बोलूँगी एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। और क्योंकि स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट्स थे तो एंडिंग में भी इसके 2 ब्रैकेट्स लगेंगे। सेम लाइन को आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब दूसरा वेरिएबल हो जाएगा num2, क्योंकि हमें सेकेंड नंबर स्टोर कराना है। एंटर द सेकेंड नंबर, और उसके बाद क्योंकि अब हमको सम चाहिए तो मैं एक सम वेरिएबल बनाऊंगी। सम इज इक्वल टू, मैं बोलूँगी num1 प्लस num2, ठीक है, और हम लोग प्रिंट करा देंगे सम, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें मैसेज चाहिए कि द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो उसके लिए आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज डबल कोट्स क्लोज सेपरेटेड बाय कॉमा, वेरिएबल का नाम आ जाएगा, क्लोज कर दिया। अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो ये अब आपका नाम पूछ रहा है यहाँ पर मैं लिख दूंगी दिव्या। एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट्स से 6, एंटर द सेकेंड नंबर 7, एंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 13। Now let's remember some important things about the input function. First, input function always take data as text, also called as string. So if you want to work with numbers, you need to convert it using int, which will be integers. And if you want to use decimal numbers, then use float. Next, always give a message inside the input, so the user knows what to type. Also, don't forget to store the input in a variable in Python, a little box that keeps your answer. And one more thing, the program will patiently wait until the user types something. Now it's your turn. Create a program that asks the user their name and age and displays a message like, "Hello Divya, you are 10 years old." I have added few more questions for you. You can check them in the description. And if you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to SkillThrill. And here's something exciting. Save your program, upload it on Google Drive and share the link in the comment. I would love to see your creation. Till then, bye and see you in the next episode of SkillThrill.